स्टार्ट दिस क्वेश्चन, क्योंकि बहुत लेंथी क्वेश्चन है, हमारी एक्सरसाइज ऐसे तो कंप्लीट ही नहीं हो पा रही। So you are given that the ratio of arithmetic mean and geometric mean of two numbers a and b. So arithmetic mean of a and b कितना होगा? You all know arithmetic mean is given by a plus b upon 2 and geometric mean is given by under root of ab. Okay. So according to question, it is given that ratio of this arithmetic mean and geometric mean is m is to n. So you can write like this: according to question, arithmetic mean upon geometric mean is equal to m is to n. Okay, that is, you are given arithmetic mean means a plus b upon 2 and geometric means under root ab is equal to m upon n. Then you have to show that what is the ratio of a and b. ठीक है, अब आपको फाइंड आउट करना है a is to b is equal to what. So that means we have to reduce this into such form that you have in the numerator a and in the denominator b. ठीक है, अब ये कैसे करेंगे देखो. So here I am using componendo and dividendo. ठीक है, so if I apply here, applying componendo and dividendo, ठीक है, ये अप्लाई करते हैं. इसका मतलब कि आपको डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है ना. सो इट इज इक्वल टू a प्लस बी. क्या करेंगे अब? प्लस 2 रूट ए बी डिवाइडेड बाय a प्लस बी माइनस 2 root b is equal to m plus n upon m minus n. ठीक है, दिख रहा है यहां तक सबको? So that is equal to m plus n upon m minus n. ठीक है, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? a plus b plus 2 root b को can I write it like this? Under root a plus under root b whole square. We can convert this to this form. कर सकते हैं हम लोग, है ना? And divided by numerator can be written as under root a minus under root b का whole square. This also we can write, है ना? So it is equal to m plus n upon m minus n. Okay. So up to this you all write. Then इसके बाद में हम आगे करेंगे. Okay. Now लिख लिया सबने यहां तक? अब नीचे से आगे जाते हैं हम लोग. See here. अब हमें क्या करना है? We want to find the ratio of a and b. ठीक है, so this step I will be writing on the top. So we have now under root a plus under root b upon under root a minus under root b whole square, and that is equal to m plus n upon m minus n. ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, दोनों को अगर मैंने स्क्वायर रूट में कर दिया तो आई कैन राइट इट लाइक दिस: अंडर रूट a प्लस b अपॉन अंडर रूट a माइनस अंडर रूट b इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ m प्लस n अपॉन
m माइनस n, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, है ना। लेकिन अभी भी हमारा क्या है, न्यूमरेटर के अंदर भी रूट बी है, डिनोमिनेटर में भी रूट बी है, बट वी वांट टू फाइनली फाइंड द रेशियो ऑफ a एंड b। तो अब हम क्या करें? कैन एनीबडी टेल मी? Apply componendo and dividendo again. Very good, Adhyansh. So again we will apply C and D. Okay. Again applying C and D. Okay. So when again you will apply componendo and dividendo, you will have what? Root A plus root B, A plus root B plus root A minus root B and minus root A minus root B. Okay. It is equal to what? Root m plus n plus root m minus n divided by root m plus n minus root m minus n. Okay. So finally you have what? These two will be cancelled and here these two will be cancelled. So you have now 2 root a divided by 2 root b is equal to, this will be as it is, okay, upon under root m plus n minus under root m minus n. Okay, so now at least you have this root a and root b. अब हमारे पास कम से कम ये तो है, ठीक है। Now if you square both the sides, you will get a divided by b, and that only we want finally. हमें यही तो चाहिए था. So squaring both sides, you have what? This 2 was cancelled. A upon b is equal to a square means m plus n plus b square minus 2, no, plus 2 ab, isn't it? Divided by a square plus b square minus 2 under root m plus n into under root m minus n. Okay. So now you are left with what? Let us see after cancelling. This n is cancelled and here also n is cancelled. A square plus b square minus 2ab. Okay. Check if anything is wrong, है ना? So this will be 2m. दिख रहा है नीचे? या फिर ऊपर लिखूं? So it is equal to 2m plus 2 under root m plus n into under root m minus n divided by 2m minus 2 under root m plus n into m minus n. अब प्रूफ क्या करना था आपको, वो भी देख लो पहले. हाँ, a is to b is equal to m plus, हाँ ठीक है. आगे अपना ये 2 तो सबकी कैंसिल हो ही गए and you will get m plus under root m square minus n square divided by m minus under root m square minus n square. ठीक है, क्लियर हो गया? Any doubt in this? एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ. See, we were given that the ratio of the arithmetic mean and geometric mean, that is a plus b upon 2 and under root ab was given to us, that is equal to m is to n, and we were asked to find the ratio of m and n. ठीक है, और m और n का a और b का रेशियो निकाला था हमें. इसके लिए हमने क्या करा, सबसे पहले कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो एक बार लगाया,
देन यू कन्वर्टेड इट टू द कंप्लीट स्क्वायर्स, ठीक है। देन आप देख सकते हैं कि अब हमें वापस से कंपोनेंडो और डिविडेंडो लगाना पड़ेगा बिकॉज वी वांट टू रिमूव द एक्स्ट्रा टर्म्स। हमें केवल ए और बी का ही रेशियो चाहिए था, है ना, इसीलिए मैंने वापस से कंपेरेंडो एंड डिविडेंडो लगा के, और इस तरह से ओनली कैलकुलेशन पार्ट इज देयर इन दिस क्वेश्चन। कंसेप्ट तो आपका केवल स्टार्टिंग में ही था, व्हेन यू वर टू यूज दैट रेशियो ऑफ दिस एरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन इज व्हाट, है ना। उसके बाद में तो आपका क्या है, डायरेक्टली बस सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम है टू गेट द आंसर। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। नाउ रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है। So next question is, if A, B, C are in AP, जो पॉइंट्स है वो सब हम लिख लेते हैं, है ना। तो 20th क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, A, B, C are in AP, ठीक है। B, C, D are in GP, B, C, D are in GP, okay, and 1 upon C, 1 upon D, 1 upon E are in AP. ये सब तो हमें गिवन है, ओके। So prove that A, C, E are in AP. To prove A, C, E are in AP, ये आपको प्रूव करना है, ओके। तो आप क्या करेंगे बताओ। सबसे पहले आपको जो जो कंडीशन दी हुई हैं उन्हें हम लोग लिख लेते हैं। सो यू आर गिवन दैट ए बी सी आर इन एपी, ठीक है। तो एपी के अंदर क्या होता है आपका, एपी के अंदर क्या होगा, बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी, का मतलब 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। तो यूजिंग गिवन कंडीशंस, है ना, हम तो यूज ही तो कर रहे हैं हम लोग गिवन कंडीशंस को। So using given conditions, you have what, 2b is equal to a plus c. ये हमें फर्स्ट वाले से मिला है, when abc are in ap। तो फर्स्ट वाली कंडीशन से आपने ये लिख दिया। सेकेंड कंडीशन क्या है, bcd are in gp, का मतलब है bcd are in gp means c upon b is equal to d upon c, और c square is equal to BD। ये हो गया हमारे पास में सेकेंड गिवन कंडीशन, ओके, वेरी गुड अंबिका। अब लास्ट वाला देखना है हमें, लास्ट वाला भी अगेन एपी में, इसका मतलब वही 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी रहेगा। तो लास्ट वाले से भी ले लेते हैं ऑल्सो, इसको मार्क कर देते हैं हम लोग फर्स्ट, इसको ले लेते हैं हम लोग सेकेंड, और इसके अंदर हो जाएगा 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। उसका मतलब कि 2 अपॉन डी इज इक्वल टू ई प्लस सी अपॉन ई सी, और इससे हम क्या निकाल सकते हैं, इससे हम डी भी निकाल सकते हैं, और डी इज इक्वल टू ई ट्वाइस ऑफ ई सी अपॉन ई प्लस सी, ठीक है। ये हमारे पास में तीन चीजें होंगी, ठीक है।
ट्वाइस ऑफ डी निकाल लिया इसने आपने। अब आप क्या करेंगे, देखो हमें क्या प्रूव करना है। अब हमें प्रूव करना है कि ए सी और ई आर इन एपी, तो हमें ए सी और ई चाहिए। तो उसका मतलब कि हमारे जो दूसरी चीजें उन्हें हमें रिमूव करना पड़ेगा। तो बताओ आप क्या करेंगे। व्हाट हैपन शुभम? सब्स्टिट्यूट इन व्हाट अंबिका? अंबिका किसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे बेटा? यू विल बी सब्स्टिट्यूटिंग इन व्हाट? इन थर्ड इक्वेशन। ठीक है, देखते हैं थर्ड इक्वेशन हमारी कौन सी है। किसके अंदर? थर्ड इक्वेशन में क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? यस मैम डी। ऐसा ओके ओके, बोलो बोलो। मैम डी को सब्स्टिट्यूट करके सी स्क्वायर अपॉन बी रख दो और फिर बी की वैल्यू रख दो फर्स्ट इक्वेशन। हाँ एक्चुअली हमें अब क्या चाहिए, केवल ए सी और ई चाहिए हम लोगों को, है ना। ए सी ई में रिलेशन निकालने हैं ना। तो थर्ड इक्वेशन में वैसे तो हमारे पास में ई और सी है, बस ए की कमी है ना। तो हमें ए और चाहिए, तो हम, और हमें डी चाहिए नहीं। तो डी की वैल्यू हम किसी और इक्वेशन में से निकाल के इसमें पुट कर सकते हैं, है ना। तो लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर हमने डी की वैल्यू सेकेंड में से निकाली तो उसमें बी और सी आ जाएंगे, मतलब बी एक्स्ट्रा आ जाएगा। उसका मतलब बी की वैल्यू वापस से फर्स्ट वाली में से डालनी पड़ेगी, इजंट इट? तो ऐसा करते हैं हम लोग, सेकेंड इक्वेशन के अंदर सी हमें चाहिए और बी और डी की वैल्यू डाल देते हैं। बी और डी की वैल्यू क्या है, ए और सी और ई के टर्म्स में। ये तो डायरेक्टली हम लोगों को जिस टर्म्स में चाहिए वही हमें रिलेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, तुम्हारा भी रॉन्ग नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर उसमें पुट करते तो हमें वापस से, लेकिन उसे इसी फॉर्म में लाना ही पड़ता, ठीक है। तो पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम 1 and 3, इसमें ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप मेरे जैसा ही करो, आप लोग अपने आप कर सकते हो ना। पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम 1 and 3 इन 2। तो 2 हमारे पास में था, सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी। तो हमारा हो जाएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू, बी है हमारा ए प्लस सी अपॉन 2 और डी है हमारा ओके। सो सी स्क्वायर into e plus c is equal to, multiply this thing, aec plus e square c, है ना। and this implies ec square, शायद सब में c कैंसल आउट हो रहा है ना, तो c को कैंसल ही कर देते हैं, ठीक है। c को कैंसल कर दो एंड यू विल गेट व्हाट, इधर से हटा देती हूँ मैं। सो दिस implies C into E plus C is equal to AE plus EC. Okay, then you have EC plus C square is equal to AE plus EC. EC से EC cancel हो गया, तो C square is equal to AE means आपको जो चाहिए था वो आपका प्रूव हो गया। यही चाहिए था ना आपको कि ACE RN क्या बताना था, जीपी, ठीक है। तो आपका प्रूव हो गया, बस यही था आपका क्वेश्चन। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए आ गया आपका, विच शोज दैट which shows that A
CER in GPN. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्टार्ट करो, जब तक मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ एक बार, ठीक है? So roll number 1 is Adyansh. Yes, ma'am. Okay. Roll number 2 is Aman. Aman is present. Okay. आबिद, सीधे आबिद है इसके बाद में, आयुष नहीं है? चेतन गुप्ता, इशिता, कार्तिक वर्मा, कार्तिक राव, कार्तिक श्रीवास्तव, सब गायब हैं आज। लगता है आप लोग की क्लास के बच्चे कुछ ज्यादा ही इंटेलिजेंट हैं, इनको क्लासेस की जरूरत ही नहीं है, सभी लोग गायब हो गए। ओके, तो कहां तक हो गया? आबिद तक हो गया। पूजा, पूजा आई है आज? नहीं। प्रियांशु, राजेश वर्मा, प्रेजेंट मैम। रोहन केदार, सक्षम, सौम्या, Present, ma'am. अंबिका, Present, ma'am. दीपिका, नहीं दीपक, मीना, प्रेजेंट मैम। देवांश, हर्ष, हितेश, इरशाद, ईशान, ओम महाजन, परिधि, प्रथम, राहुल महाजन, रोहित, शिवम, शुभम मीना, मैम। तन्मय, प्रेजेंट मैम। तन्मय इज प्रेजेंट। प्रेजेंट मैम। वेदांत, विशेष एंड विश्वजीत। हो गए? ठीक है। Okay, now come to the next question. अरे टाइम चेंज हो गया तो आप लोग सब गायब कहाँ हो गए? हाँ, you people are very busy it seems. Now see question number 21 is find the sum of the following series up to n terms. So first part is 5 plus 55 plus 555 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, अब ये कोई सीरीज तो बनी रही नहीं रही है, आपको दिख रहा है क्लियरली कि ये ना तो कोई एपी बन रही है ना कोई जीपी सीरीज बन रही है ना? तो अब इसमें क्या करेंगे? तो जब भी इस तरह के क्वेश्चंस व्हेनेवर यू विल फाइंड, आप उसको एक ट्रिक से सॉल्व करना पड़ेगा आपको। सो हियर इफ यू टेक आउट कॉमन 5 यू विल गेट व्हाट? 1 प्लस 1 1 प्लस 111 प्लस एंड सो ऑन। बट अगेन if you will observe this thing, you will find that again still you cannot find any type of series in this. ऐसा कोई सीरीज हमें नहीं मिल रही है जिससे हम लोग ऐड करके निकाल सकें। So there is a point to be noted here. If we multiply and divide this equation by 9,
सो व्हाट यू विल गेट, अगर हम इसे 9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, तो एक तो डिवाइड करा और एक मल्टीप्लाई करा, तो आ गया आपका 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस एंड सो ऑन. नाउ दिस कैन बी रिटर्न एज 9 को हम लिख सकते हैं ऐसे 10 माइनस 1, प्लस इसको लिख सकते हैं 100 माइनस 1, इसको लिख सकते हैं हम 1000 माइनस 1 एंड सो ऑन, है ना, ऐसे लिख सकते हैं. सो नाउ you will observe that we are very near to form a series. अब हम बहुत करीब आ गए हैं इस चीज के. That is, अगर हम इसे ऐसे लिख दें 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब प्लस एंड सो ऑन, और माइनस सबके अंदर 1 ही आएगा, है ना. सो दिस इज व्हाट, this is a GP with first term is equal to 10 and common ratio is equal to 10, है ना. दोनों चीजें उसकी सेम ही है, तो इससे आपकी एक जीपी बन जाएगी. तो जीपी का सम निकाल सकते हैं हम लोग. जीपी के अंदर क्या है, a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ठीक है, और इसको लिख सकते हैं दिस इज n टाइम्स, so this can be written as माइनस n. ओके, अब क्या करते हैं हम लोग, सो इट इज इक्वल टू 5 अपॉन 9. नाउ यू कैन सॉल्व दिस. 10 अपॉन 9 इंटू 10 की पावर n माइनस 1 माइनस n. आई डोंट नो आंसर कौन से टर्म्स में, इसी टर्म्स में है क्या आंसर? यू कैन चेक द आंसर. कोई बताएगा मुझे करेक्ट है आंसर या नहीं? इज इट करेक्ट? चेक नहीं करा किसी ने आंसर अभी तक? सही है. सही है, ओके. सो दिस वाज वेरी सिंपल क्वेश्चन, दैट इज सम ऑफ दिस गिवन सीरीज. नाउ सेकेंड पार्ट यू विल बी डूइंग योरसेल्फ. बस इसमें आपको इतना सा ध्यान रखना है कि ये जो 0.6 है फिर 0.66 है, इसके अंदर आप लोग क्या करेंगे ये बताओ. पहले 6 को कॉमन ले लेंगे, है ना. तो 6 को कॉमन लेंगे तो आपका बच जाएगा 0.1 प्लस 0.11, है ना. तो ये प्रॉब्लम भी आपकी वैसे ही प्रीवियस क्वेश्चन जैसी बन जाएगी. इसको भी आप 9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो आपको ऊपर 0.9 0.99 ऐसे मिल जाएगा, ठीक है. सो यू कैन ऑल्सो अगेन रिप्रेजेंट इट इन टर्म्स ऑफ सम सीरीज, ठीक है. सो टुडे यू ऑल विल ट्राई दिस पार्ट एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू विल आस्क मी टुमारो, ठीक है. आज अपने आप पहले से ट्राई करेंगे क्योंकि अब तो सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं, उन्हें हम सॉल्व नहीं करेंगे, है ना, टाइम नहीं है ना इतना. ओके, so now come to question number 20. 22 21 कर रहे थे ना हम लोग. So question number 22 is find the 20th term of the series. क्या दिया है आपको 22 में? सीरीज आपको क्या दी हुई है, 2 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 8 प्लस एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स, है ना. और आपको क्या निकालना है 20th टर्म दिस ऑफ दिस सीरीज. इसका मतलब 20th टर्म क्या होगा, 20th टर्म of 2, 4, 6 and so on. इसका 20th टर्म और सेकेंड वाले टर्म्स का भी 20th टर्म ऑफ 4, 6, 8, है ना. इसका भी 20th टर्म, दोनों का 20th टर्म हमें निकालना है और मल्टीप्लाई करना है. तो इसका 20th टर्म मतलब
A20 है ना, इसका मतलब कि A प्लस n-1 इंटू D कितना है 2, और इसमें क्या हो जाएगा आपका A क्या है 4 प्लस 20-1 इंटू D। अब आप लोग ये फाइंड करके मुझे बताएंगे क्या है, कितना आ रहा है आंसर। ठीक है, जल्दी से बताओ आंसर, आंसर निकालो जल्दी से एंड टेल मी व्हाट इज द आंसर। हरी अप। 1680. हाँ 1680. 1680। ओके, लेट अस कंफर्म विद समबडी एल्स आल्सो। और किसी ने फाइंड किया है? ओके, आद्यांश इज आल्सो सेइंग द सेम थिंग। Yes, ma'am. Ambika? 1680. Okay, Ambika also. So I think it's correct also. Deepak is also giving the same answer. Okay, तो उसका मतलब ये हमारा करेक्ट आंसर है ना, ठीक है। So now come to the next question. So next question is find the sum of the first n terms of the series. आपको इनका sum of first n terms निकालना है। So it is 3 plus 7 plus 13 plus 21 and so on up to an तक है, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ कि ये कौन सी सीरीज है। इज इट एन एपी और इट इज एन जीपी, कौन सी सीरीज बन रही है ये, टेल मी। ये एपी है या कोई जीपी बन रही है? तो जब आप देखोगे इसे माइन्यूटली, जब आप ऑब्जर्व करोगे, यू विल फाइंड दैट इट इज नॉट हैविंग एनी कॉमन रेशियो और एनी कॉमन डिफरेंस। तो इस तरह का क्वेश्चन यू हैव इन योर एग्जाम्पल में आपके पास में होगा कि अब इसे हमें कन्वर्ट तो करना ही पड़ेगा उस सीरीज में। तो हम क्या करेंगे, इसको एक एक टर्म आगे बढ़ा देंगे। वी विल शिफ्ट ऑल द टर्म्स टू द राइट बाय 1 स्टेप, है ना। तो अब हम इसे मान लेते हैं कि ये हमारा एस एन है। तो जब आपने टर्म्स को मूव करा राइट में, तो भी रहेगा तो ये एस एन 3 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 27 एंड so on up to an-1 और an तक, ठीक है। अब आपके पास में क्या बचेगा, अब आपने इनको माइनस करना है। So when you will subtract these, तो यहाँ से आपका जीरो आ जाएगा, Sn minus Sn 0, and now you have what 3 plus 4 plus 6 plus 8 and so on। अब लास्ट में क्या बचेगा आपका, माइनस an बचेगा आपके पास में, है ना। तो अब आपको दिख रहा है एक सीरीज बनी गई है यहाँ पे, हमारे पास में एक सीरीज बन गई है ये वाली, है ना। अब इस सीरीज का सम आप निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमें करना क्या था, सम निकालना था ना, ठीक है। तो अब क्या बन गई आपकी, एक सीरीज बन गई, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा, एक टर्म कम तक होगा ना, n-1 टर्म्स तक होगा ये। तो ये हो जाएगा 3 प्लस, इसका सम निकालेंगे तो n-1 अपॉन 2 इंटू a प्लस n-1 इंटू डी। चलो अब जल्दी से मुझे ये सॉल्व करके बताओ आप लोग इसके अंदर। 1-2 इंटू 2, हाँ सही है। कितना आया, कितना आ गया, 3 प्लस n-1 अपॉन 2 इंटू
8 plus n minus 2 into 2 मीन्स 8 minus 4 हो जाता है ना। 3 plus आज सब कहाँ गए बच्चे? 8 minus 4 4 plus 2n है ना। इसमें से भी 2 को हम लोग बाहर ले सकते हैं ना। तो ये हो जाएगा 3 plus n minus 1 into n plus 2 है ना। प्लीज चेक दिस। हाँ तन मैं अभी रिपीट करती हूँ बेटा, एक बार इसमें हम लोग आंसर तक पहुंच जाए फिर मैं रिपीट करती हूँ। वैसे ऐसा एक एग्जाम्पल है आपकी बुक में, अभी बताती हूँ एग्जाम्पल भी मैं। यहाँ तक एक बार चेक कर लेना ये सही आया है या नहीं, है ना। आप लोग अगर साथ में कर रहे होंगे तो चेक हो जाएगा। n स्क्वायर प्लस 2n माइनस n मीन्स प्लस n माइनस 2, यहाँ तक तो आ गए हम लोग। ठीक है, an निकल गया अभी हमारा इससे। क्या निकला है? an। यहाँ था ना अपना an, तो ये 0 की जगह इधर आ गया। इज इट करेक्ट? हाँ सौम्या तुमने तो डायरेक्टली आंसर बता दिया बेटा। देखो मैं बताती हूँ तुम्हें शुभम, इन योर बुक ऑन पेज नंबर, एक मिनट रुको बेटा, आपने शायद सारे एग्जाम्पल नहीं करे बेटा, है ना। सेम सेम टू सेम ऐसा ही एग्जाम्पल आपके पास में आया है एक बुक के अंदर। एक मिनट बताती हूँ मैं। Yes, others, please confirm and tell me whether our answer is correct or not. मतलब आंसर नहीं आया अभी हमारा, लेकिन यहाँ तक सही है या नहीं, क्योंकि हम लोग फिर आगे चले जाएं कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए हमारे आंसर्स में। देखो बेटा तन्मय, देखो पेज नंबर 195 में देखो बेटा, इसी तरह की एक सीरीज दी थी आपको, है ना। पेज नंबर 195 पे सम द सीरीज ऑफ 5 plus 11 plus 19 इस तरह से दी थी ना आपको। देखो इस एग्जाम्पल में, अगर आपने ये एग्जाम्पल किया होता ना बेटा तो मुश्किल नहीं आती। प्लस 29 प्लस 41 ऐसी सीरीज थी, है ना। अब ये सीरीज भी हमारी ना इट वाज नाइदर जीपी नॉर एपी, इसमें भी हमने वही वन टर्म शिफ्ट करके देखा था ना, तो आपके बनने लग गई थी फिर सीरीज से। जैसे अब इसको 5 plus 11 plus 19 plus 29 किया, तो जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो यू विल गेट व्हाट, इधर तो 5 ही आएगा, प्लस यहाँ पर कितना बचा आपका 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12, ऐसे करके आपके पास में एक एपी बनने लग जाएगी इधर, है ना। और लास्ट टर्म क्या होगा? माइनस एन वाला बचा रह जाएगा, क्योंकि आगे का टर्म तो बचेगा ही सही। एक तो इधर आगे का टर्म बचेगा और एक लास्ट टर्म, क्योंकि हम लोग इसे लास्ट तक खिसका रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड, तो एक लास्ट टर्म जो है हमारा वो बचेगा और एक फर्स्ट टर्म हमारा बचेगा, है ना। तो फर्स्ट टर्म हमारा 3 है एंड लास्ट टर्म इज अवर an, okay. So but when you are subtracting these two, sn minus sn will give you 0, so you this an will come on this side, है ना। तो ये an हमारा इधर आ गया। तो अभी तक आप जब क्वेश्चंस में कर रहे थे, अगर आपको सम ऑफ द सीरीज निकालना है और अगर आपने लास्ट टर्म निकाल लिया है an, तो यू कैन उसको सबमिशन लेके टेक द सबमिशन ऑफ दिस एंड देन फाइनली फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। तो हमने सेम वही रूल को इसमें यूज करा है और an निकाल लिया। an हमारा इतना आ गया, ठीक है। तो an हमारा कितना आ गया? n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 तक आ गया, है ना। अब तो आप SN निकाल सकते हो, SN निकाल सकते हो ना इसको सबमिशन लेके। इसको मिटा देते हैं, है ना। ठीक है, सो SN क्या हो जाएगा आपका? सबमिशन k इज इक्वल टू 1 to n k स्क्वायर प्लस k प्लस 1 और सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ सीरीज
अप टू n, आपको पता ही n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 और सम ऑफ n टर्म्स मीन्स n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 और 1 का केवल n आ जाएगा। ठीक है, अब आपको इस सब का सम निकालना है और आंसर निकल जाएगा आपका। ठीक है, इज इट क्लियर तन्मय, और शुड आई रिपीट? और किसी को डाउट है? क्लियर यस तन्मय, क्लियर। ओके क्लियर। और किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? अच्छा क्वेश्चन है ये ना। ओके, एक दो बार जब आप खुद करोगे बेटा तो आराम से सॉल्व हो जाएगा आपसे ना, फिर डाउट नहीं रहेगा। ओके, तो टाइम भी होना है वाला है, हम लोग एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, 24th वाला। Because tomorrow we must finish this exercise so that at least we can start chapter number 10. Okay, so question number 24 is if S1, S2 and S3 are the sum of first n natural numbers, their squares and their cubes respectively, show that, so you have to show that 9s2 square is equal to s3 into 1 plus 8s1। ये प्रूफ करना है। और s1, s2, s3 आप क्या दे रखे हैं? s1 तो आपको दे रखा है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स मींस n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, और s2 आपको दे रखा है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, और s3 आपको दे रखा है सम ऑफ द क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ये दे रखे हैं आपको। सो शो दैट दिस इज इक्वल टू दिस। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं? 9s2 स्क्वायर इज इक्वल टू s3 इंटू 1 प्लस 8s1 निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो s3 कितना है? n स्क्वायर n प्लस 1 स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 1 प्लस 8 n प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं ना। सो इट इज इक्वल टू n स्क्वायर n प्लस 1 स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 2 प्लस 8n स्क्वायर प्लस 8n डिवाइडेड बाय 2। अब ये क्वाड्रेटिक बन गई है ना, इसे सॉल्व करें, कितना आएगा? अच्छा, 2 तो सब में से कैंसिल ही हो जाएगा, सो इट विल बी n स्क्वायर n प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 4, और प्रूफ क्या करना है? 9s2 स्क्वायर, ओके, इंटू 4n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1। कोई मुझे बताएगा इसका, इस क्वाड्रेटिक का क्या होगा सॉल्यूशन? एक्चुअली में तो ये आपका 2n प्लस 1 का ही स्क्वायर है ना, isn't it? This is the square of 2n plus 1. It is equal to n square n plus 1 square upon 4 और 2n plus 1 का स्क्वायर है ना। अब प्रूफ हमें क्या करना था? 9s2 स्क्वायर के बराबर है ये। 9s2 स्क्वायर हमारा 9 तो कहीं आया ही नहीं, एक मिनट देखते हैं। s2 कितना था हमारा? s2 था n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। ये हाँ, तो 9s2 स्क्वायर विल बी व्हाट? इनटू 9 है ना। ओके, हमारा आ गया। इट इज एक्चुअली फाइनली इक्वल टू 9s2 स्क्वायर है ना, सेम वही आ गया हमारा तो। ओके,
तो आज आप लोग इतना ही कर लेना 24 तक. सो टुमारो वी विल फिनिश दिस एक्सरसाइज, है ना. जितने बच्चे हैं कुछ ऑल्टरनेट प्रॉब्लम्स कर लेंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स. ओके, देन डे आफ्टर टुमारो वी विल स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू, बाय बाय.